Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in this video, we will discuss comparison between RRB officer, IBPS PO, and SBI PO. Because some of you may be selected in all these three or two of these three, and then you have to decide which one is a better choice for you, and this choice may vary from person to person. So in this video I will be only explaining the bare facts. Decision is to be taken based on your own requirements and your own aspirations. Now if we look at RRB officer, RRB being small banks and mainly confined to a state or to few district in state. So the persons posted in RRBs will be remaining in those areas only. That means if you get the native state, you are comfortable with the posting within those state because no interbank transfers are permitted. So if you are given a RRB that is outside your state, naturally you will be outside the state till you work in that RRB. That is one limitation. Salary is more or less similar to IBPS PO, but some facilities are lower than IBPS PO. So RRB officer is a position where you can be comfortable as far as posting is concerned, but as far as parks are concerned, it is not matching the IBPS PO and SBI PO. Now in IBPS PO, the posting may be in your state, may be outside your state. Most of the banks, POs are posted pan India. In some states, some banks, they consider the nearness to your home also. So that depends which bank you get, what is their placement policy, and how you are placed in that bank. As far as salary is concerned, salary of IBPS PO is similar to that of RRB PO, but parks are more, and number of banks they offer better facilities in IBPS PO as compared to RRB PO. And promotion prospects in RRB PO are less, IBPS PO is better. Then comes SBI PO. In SBI PO, 4 advance increments are there. So due to these 4 advance increments, the salary is highest amongst these three. So SBI PO salary is higher than IBPS PO as well as RRB PO. Some facilities are also superior as compared to IBPS PO and RRB PO. Promotion is comparable with IBPS PO but faster than RRB PO. The slowest promotion among us these three is RRB PO due to smaller size. So promotion wise IBPS PO is good, SBI PO is good. Facility wise SBI PO is best among us these three. So you can decide whether to remain in RRB or to go for IBPS PO or SBI PO, and that will only depend when you are selected for more than one out of these three कैटेगरीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से कई लोग ऐसे हैं जो IBPS RRB PO भी सिलेक्ट हो गए, IBPS PO भी सिलेक्ट हो गए, SBI PO भी सिलेक्ट हो गए. तो आप चाहते हैं कि एक कंपैरिजन किया जाए. इसमें हम अगर IBPS RRB ऑफिसर को देखें तो उसमें एक एडवांटेज है, क्योंकि ये बैंक या तो विद इन दी स्टेट है या फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट है. तो अगर आपको अपना स्टेट मिल जाता है तो इसमें आप विद इन दैट स्टेट ही रहेंगे, क्योंकि इंटर बैंक ट्रांसफ़र नहीं है RRB के अंदर. एक ये कंफर्ट RRBs में है एज़ कम्पेयर टू IBPS PO एंड SBI PO, जहाँ पर पोस्टिंग पैन इंडिया भी हो सकती है.
आरआरबी पीओ के अंदर जो सैलरी है वो लगभग आईबीपीएस पीओ जितनी है, बट पर्क्स कम है एज कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ। तो आरआरबी पीओ के अंदर जो कंफर्ट है, अगर आपको अपना स्टेट मिल गया तो एक पोस्टिंग का कंफर्ट है, दूसरा स्टेट मिल गया तो आप अपने स्टेट में कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि उस स्टेट में वो बैंक ही नहीं है, क्योंकि इंटर बैंक ट्रांसफ़र परमिटेड नहीं है। आईबीपीएस पीओ में सैलरी सिमिलर ही है आरआरबी पीओ जितनी, मगर पर्क्स बेटर हैं। अधिकांश बैंकों में पर्क्स काफ़ी बेटर हैं आरआरबी के मुकाबले, मगर यहाँ पर जो पोस्टिंग्स हैं वो पैन इंडिया है। कई बैंकों के अंदर नेटिव स्टेट्स में भी पोस्टिंग दी जाती है, कईयों में दूर भी दी जाती है, तो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है उसकी प्लेसमेंट पॉलिसी क्या है। पर आईबीपीएस पीओ में मेनली पैन इंडिया पोस्टिंग्स होती हैं, तो उसमें पूरे भारत में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें एसबीआई के अंदर एक एडवांटेज है इन दोनों के मुकाबले कि एसबीआई पीओ को 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं। 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलने की वजह से जो सैलरी है वो इन दोनों के मुकाबले हायर है। पर्क्स भी स्टेट बैंक के अंदर काफ़ी बैंकों से बेटर है, तो वहाँ भी पोजीशन हायर हो जाती है। प्रमोशन के मामले में अगर हम देखें तो आईबीपीएस पीओ में प्रमोशन फास्ट है आरआरबी पीओ के मुकाबले, और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में प्रमोशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्योंकि काफ़ी बैंकों में क्राइटेरिया सिमिलर ही हैं जो एसबीआई पीओ में है। तो जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है वो लगभग सेम है। पोस्टिंग के मामले में भी एसबीआई के अंदर सर्कल एलोकेशन होती है, आप उस सर्कल में रहते हैं, अगर तो आपको सेम सर्कल मिल जाता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी कंफर्टेबल रहती है पोस्टिंग्स, और दूसरा सर्कल मिलता है तो थोड़ा उसमें दिक्कत भी है। अब जहाँ तक वर्कलोड का कंपैरिजन अगर हम करें तीनों के अंदर, तो सबसे कम वर्कलोड माना जाता है आरआरबी में है, उससे हायर है आईबीपीएस बैंक्स के अंदर, और सबसे अधिक है एसबीआई के अंदर, क्योंकि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, उसके पास एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एसबीआई की जो जॉब है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है इन तीनों जॉब्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपना कंफर्ट लेवल, अपनी रिक्वायरमेंट्स को आपको सोचकर फैसला करना है। अधिकांश लोगों का इन तीनों में जो झुकाव है वो एसबीआई पीओ की तरफ रहता है, मगर काफ़ी लोग हैं जो आईबीपीएस पीओ भी प्रेफर करते हैं और आरआरबी ऑफिसर भी प्रेफर करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।